Hello and good evening, everyone. We once again welcome you to Unveil Talks and hope all of you are having a good time at home. Also, not forgetting to sit in the Lord's presence and connecting to His presence, because this is the time, this is the time we can. Though we are working, and but I think if the traveling time has been saved, there is a lot of time which have been saved, okay, and I think that time could be used to sit in the presence of the Lord. So yes, once again welcoming you all in the name of our Lord Jesus Christ. We want to thank you, Lord, Holy Spirit, God, for this wonderful sessions of Unveil Talks. And we would like to thank everyone for joining and people who will be joining later as well. So my name is Preeti Reddy, and we have come up with Unveil Talks to have a personalized conversation with our guests. We have always seen, and हमने हमेशा से देखा है कि ना preachers preach करते हैं और worshippers worship. हम कभी उनके स्टोरी को नहीं जान पाए, या जर्नी, स्टोरी ऑफ देयर पेन, स्टोरी ऑफ देयर स्ट्रेंथ. सो वी हैव नेवर heard or come across the story of their and how they have sustained in their calling as well. So yes, with my again, I think this is the third time I'm just inviting you, and with my co-host Ralston. Hello, everyone. Praise the Lord. And this is a wonderful day, wonderful evening that the Lord has given us. So we are having a great time, and it's been amazing. All the guests that are coming in, they are sharing their heart out with our church, with our people, with the entire community. And this is a move that the Lord has given us, and we we hope and believe that it has been a blessing to so many of you. As the videos are rolling in, as the messages are rolling in, there are a lot of things that are happening at the like in people's heart, people's life. They are getting their answers, they're getting their questions, unanswered questions are being answered at this point of time. And like they're sharing their testimonies, like they're sharing the word, they're sharing their heart out. I believe there are a lot of people who are connecting to their story, they're connecting to their heart, and in a way the Lord is blessing and guiding them to take the right steps in the right way. And nothing more, nothing less, I just really want to encourage you, everybody, all across all locations right now, everyone who is watching, who have been with us in this journey till this time. And I really want to encourage you to share this link with whomever possible. I believe it is not just for a limited section of people, but it is for everybody, because we all are human beings, right? So we can relate to each other. We can relate to each other's problems. We can relate to each other's solution. You can be an helping hand to somebody, so that you can be a rescue maker. Like you can just rescue him. So by sharing this link, this is just a like a it's not we are not here to get our likes up or subscribers up. No, we are not here for that. We are here to just serve our people. We are here to serve you guys with the best way possible. Amen. So just share the link with your friends, with your family. Get your family along. It will be hardly 40-45 minutes. Just let's be have a good time together. So over to you, Preeti, right now. Get encouraged Yes, and I let's really. go ahead. Yeah. Yeah, thank you so much, Ralston. And yes, I really want to thank a lot of people who have been joining so far and sharing our link, sharing the poster. So I really personally want to thank each of you to join here, and really God would bless you. And also, some of the names which I want to take is Melvina and Joy, Samson, and you guys are sharing the post. I really want to thank you from the Unveil team wants to thank you from the bottom of our heart. And brother Sachin Chirsad, my sister-in-law Priscilla, and people who are joining, my sister Jacqueline and my sister-in-law Dipti,
and it's family and it's friends as well. So if I've forgotten some names, please excuse me. It's I But I really want to thank you. You people have been sharing, joining, my sister's son Austin, Jetson, Pastor George, and yeah, I've just been forgetting the names, but I really want to thank you. So yes, I want, in between, if I remember the names, surely I will mention those, because with some of them have done it without saying. They used to just see the status and they used to just take the screenshot and just post it. Really, God would bless you all mightily and abundantly. This is what we pray. And share the link as much as possible. You could be a blessing to some other. And also my brother Neil, yes, our pastor Austin, Auntie Yvonne, Auntie Lohita, and Auntie Hazel, my mother Salome, my brother Jonathan. You have all been watching this throughout, and all the viewers, I really want to thank you. Like, these people have been sharing the links, these people have been uh, sharing the posters. So really putting hard efforts according to us. Okay. So we really want to thank them. And my sister Sonal, yes, my sister Anita, even they have been sharing the posters. So really want to thank. And so please do share the link. And I don't know whether you have felt the joy of someone calling you as a blessing, or really you have been a blessing to our family or to us. So I think this could be a moment, or this could be an opportunity for you to share the link. Please don't think ki are pata nahi mere dost kya bolenge kya nahi. Just share it. You may not know who will be blessed, and then you could be a reason for their blessing or for their salvation. Trust me, it's a joyful moment, that when someone says you are really blessing. I don't know whether you have seen this, but whether you have experienced this, but it's really, really a joy. So I think much has been spoken on this. Without taking much time, let's welcome our today's guest. So let me introduce first to our today's guest. Our today's guest happens to be a musician, worshipper, and he's been doing a wonderful ministry in the local trains of spreading the gospel, which is, and he happens to become a motivational speaker as well. So without taking much time, let's welcome our today's guest, brother Hussein Masih. With the clapping emoji, or with the all the emoji, show the love, and let's welcome. Brother Hussein, are you there? Yes. So, Bhai Hussein, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं. We really want to thank you for accepting our invitation and coming over here. And आपने हमारा invitation को accept किया है. And हम इस session की शुरुआत करते हैं. और धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए. और इस समय जो है हम आपसे जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आज के सेशन के लिए आपसे क्या बात, आप what Lord has placed in your heart for our unveiled viewers, हमारे unveiled viewers के लिए. So over to you, brother Hussein. I welcome you in the name of Lord our Savior Jesus Christ. मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं. और हम समय नहीं बिताएंगे. हम कुछ समय हम एक छोटा सा गीत गाएंगे और उसके साथ साथ हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे और बहुत सारी नई बातों को हम सीखेंगे और प्रभु में बढ़ेंगे. हालेलुया, हालेलुया. खुदा की आराधना करेंगे. थैंक यू जीसस. कभी पत्थर से पानी वो देता था, कभी पानी को दवा वो करता था, कभी पत्थर से पानी वो देता था, कभी पानी को दवा वो करता था.
कभी लंगड़ों को तो कभी अंधों को, कभी मुर्दों में जिंदगी रवा करता था। ए इंसान तू तो बस एक इंसान है, ए इंसान तू तो बस एक इंसान है, वो तो खुदा का बेटा होकर भी दुआ करता था। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। दुआ के बगैर जिंदगी एक धोखा है, एक झूठी खुशी हवा का झोंका है। दुआ के बगैर जिंदगी एक धोखा है, एक झूठी खुशी हवा का झोंका है। दुआ ये मरते हुए की जान बचा देता है, दुआ तो बाप को बेटे से मिला देता है। दुआ कर ले आखिर किसने तुझे रोका है, दुआ कर ले आखिर किसने तुझे रोका है। दुआ ये छोटी बात नहीं, खुदा से मिलने का मौका है। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, पिता इस दिन के लिए खुदा हम धन्यवाद करते हैं आपके अनंतकालीन वचनों के लिए पिता, जो हमारे जीवन में एक मजबूत नींव है खुदावन। और जैसे हम आपके वचनों को पढ़ेंगे खुदावन, उन वचनों को समझने के लिए पिता आप हमारी समझदारी की आंखों को खोल दीजिए खुदावन, ताकि हम वचनों को समझकर अपने जीवन में ग्रहण कर सके। जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ने वाले खुदावन, और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हैं खुदावन, हर एक लोगों के हृदय को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके हृदय को ऐसे तैयार कर खुदावन कि ये वचन जो उनके हृदय में बोया जाएगा, शैतान उनके हृदय से छीन न पाए। पिता पिता अपनी कृपा दान करके इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है, ये संधि दिया है कि हम आपके साथ रूबेरू होकर खुदा के वचनों को पढ़े और उनसे कुछ सीखे। हालेलुया। हम देखेंगे उढ़ाऊ पुत्र की कहानी। जैसे कि आप सभी को पता है, एक पिता के दो बेटे थे, एक छोटा था एक बड़ा था। कुछ समय बाद जो बड़ा बेटा है वो घर पर रहता है, और छोटा बेटा उनके सारे परिवार को छोड़कर चले जाता है, और कुछ समय बाद वो लौट आता है। उस सारी कहानी को हम जानते हैं। आज उसी कहानी पर हम देखेंगे, और उसी कहानी से हम सीखेंगे कि परमेश्वर किस तौर पर हमें ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर किस तौर पर हमें आशीषित करना चाहता है, और परमेश्वर ने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए रखी है, जो खुदा पर विश्वास करते हैं। मैं वचन पढ़ूंगा आप सभी के लिए। मेरी वाइफ है मेरे साथ में, तो वो इस अध्याय को पढ़ेगी और हम सारे लोग मिलकर सुनेंगे और उन सारे वचनों पर हम अध्ययन करेंगे। लूका इसका 15वां अध्याय और 11 नंबर से। आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। और अगर आप फेसबुक पर मुझे आप देख रहे हैं तो आपके राइट साइड में एक स्टार्ट करके ऑप्शन रहेगा। अगर आप उसे स्टार्ट करते हो तो यही वीडियो आपके टाइमलाइन पर आप प्ले कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, और आपके जो भी फ्रेंड्स है उसे ये वीडियो दिखा सकते हैं और प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे।
उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। आगे मैं हालेलुया। पढ़ता हूँ। 18 नंबर का वचन बहुत ही अच्छा है, तो वहां से मैं आगे पढ़ूंगा। 18 नंबर का वचन यो कहता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम थोड़ा पहले अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 17 नंबर का वचन कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आप में आया, जब उसने सोचा, जब उसने खुद की जिंदगी के बारे में सोचा, तब वो सोचने लगा कि मेरे पिताजी के घर पर कितने तो ऐसे नौकर है, कितने तो ऐसे मजदूर है जो मुझसे कई गुना ज्यादा भोजन खाते हैं। आपको पता है प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि है ना, वो बेटे का है ना पिता के प्रति जो प्यार था, है ना, बेटे का जो पिता के प्रति जो लगाव था, उसकी वजह से वो बेटा जो है वो फिर से लौट आता है। पर नहीं, यहाँ पर बाइबल साफ साफ कहती है कि जब वो आपे में आया, जब वो अपने आप में आया, वो सोचने लगा कि मेरे पिताजी के घर में कितने तो ऐसे मजदूर हैं जो मुझसे कई गुना ज्यादा खाना खाते हैं। आपको पता है एक चीज ऐसी है जो है उसकी भूख, उसका जो पेट, उसकी जिंदगी, उसने खुद के बारे में सोचा, यार मतलब मैं कम से कम मेरे पिताजी के यहाँ पर अगर मैं नौकरी भी कर लूं तो मैं पेट भर कर खाना खा सकता हूं। प्रियो, उसके पिताजी के प्रति उसमें कुछ इतना प्यार नहीं था जितना हम बयां कर सकते हैं, वचन के द्वारा बता सकते हैं। बट एक बात थी जो उसकी भूख थी। उस भूख के वजह से वो बेटा सोचने लगा कि यार चलो मैं पिता के पास जाता हूं और उससे कहता हूं कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तुम्हारी दृष्टि में मैंने पाप किया है, अपराध किया है। अब मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले ताकि मैं वहां पर तेरे यहाँ पर मजदूरी करूं। वो यहाँ पर ये अपेक्षा करके नहीं गया था कि ना मेरा पिताजी मुझे एक्सेप्ट करे, मेरा पिताजी मुझे अपनाए, नहीं, पर वो इस चीज के लिए गया था ताकि वो पेट भरकर खाना खा सके। आगे वचन कहता है, 20 नंबर का वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये वचनों पर हम ध्यान देंगे, मनन करेंगे। बाइबल यहां पर बताती है कि जब वो वहां से निकला, जब वो दूर ही था, तब उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसके पास गया और उससे गले लगाया और बहुत चूमा। फिर आपको पता है जो पिताजी है वो हर दिन हर समय उस जिस रास्ते से वो लड़का गया था उसी रास्ते पर वो उसकी राह देखता था। वो ही वॉज वेटिंग फॉर हिज सन कि वो उसका बेटा कभी ना कभी लौट आएगा और उस बेटे को मैं फिर से प्यार कर सकूंगा। फिर आपको पता है परिवार में जब भी हमारे परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तब हम उससे बहुत प्यार देते हैं, हम उसका बहुत ही सराहना करते हैं, हम उससे बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं। पर आपको पता है उसके बाद अगर और कोई बच्चा अगर हमारे परिवार में पैदा हो जाए तो आपको पता है हम छोटे वाले को ज्यादा मोहब्बत करते हैं।
छोटे वाले को जरा ज्यादा हम लाड़ प्यार करते हैं, छोटे वाले को जरा कपड़े खरीद के देते हैं, छोटे वाले को है ना चॉकलेट्स देते हैं, है ना, बहुत सारे खिलौने देते हैं। तो बड़ा वाला सोचता है अरे यार पहला तो मेरा बहुत ही प्यार करते थे, अभी छोटे वाले। प्रियो, हर एक परिवार में जो छोटा होता है ना उससे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। मराठी में बोलते हैं ना शेंडफळ। हमारे परिवार में मेरा छोटा भाई है तो हम उसको बोलते हैं ना हे घरातलं शेंडफळ आहे, म्हणजे बोलते हैं ना कि छोटा है लाडला होता है। तो उसी तौर पर इसी परिवार में भी जो छोटा बच्चा था, जो छोटा लड़का था, उससे पिताजी बहुत प्यार करते थे। आपको पता है वहां पर बाइबल कहती है कि जैसे वो दूर ही था, पिताजी दौड़ कर गए और उसे गले लगाया और चूमा। इसका मतलब ये है कि वो पिताजी उस छोटे बेटे की राह को ताकते थे, कभी मेरा बेटा वापस आएगा, मेरे बेटे से मैं कभी मिलूंगा, कभी मैं उससे देखूंगा। फिर बाइबल आगे देखो क्या कहता है, गले लगाया बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जो उसने सोचा था, जो बेटे ने सोचा था कि मैं जाकर पिताजी से कहूंगा, वैसी ही बात उस बेटे ने अपने पिताजी से कही। बाइबल आगे क्या लिखती है हम देखेंगे। परंतु परंतु यानी क्विक, यानी इमीडिएटली, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। हालेलुया। आज जो है हम इन 3 बातों पर देखेंगे। पहली बात अच्छे से अच्छा वस्त्र, दूसरी बात अंगूठी और तीसरी बात पांव में जूतियां। आपको पता है इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, जैसे पिताजी ने दौड़कर उसके पास आया तो उसे गले लगाया। आपको पता है वो जो लड़का था दूर देश में क्या काम करता था? वो लड़का सूअर चराने का काम करता था। आप सोचो, जिन फलियों में से सूअर खाते हैं, वो चाहता था कि वही फलिये वो खाए। और जैसे वो सूअर चराने का काम करता, प्रियो सोचो उसके शरीर से कितनी बदबू आती होगी। उसका जो पहनावा होगा वो राजा महाराजा जैसा नहीं होगा। उसका जो कपड़ा होगा बहुत ही गंदा हुआ होगा। वो बहुत दूर देश से वो ट्रैवल करके आया, उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आती होगी, पर फिर भी उसके पिता ने उसे गले लगाया और उसको चूमा। उसके बाद जैसे उस बच्चे ने सोचा था कि मैं कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया, अभी मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक काम कर ले, तू मुझे एक नौकर के समान रख ले। पर बाइबल वहां पर कहती है कि तुरंत पिताजी ने झट से अच्छे से अच्छे वस्त्र लाने के लिए अपने दासों से कहा। क्यों पता है जब उसने उन बातों को कहा तब पिताजी का जो आंसर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? अरे बेटा ठीक है, तूने गलती की ना, चल मैं तुझे माफ करता हूं। पर बाइबल ऐसे नहीं कहता है कि मैंने तुझे माफ किया और फिर से वैसे मत कर। बाइबल ऐसे नहीं कहता। बाइबल ऐसे कहता है कि तुरंत उसने अपने दासों से कहा कि झट से अच्छे से अच्छा वस्त्र उसे पहनाओ, उसके उंगली में अंगूठी पहनाओ और पांव में जूतियां पहनाओ। ये 3 बातों पर हम गौर करेंगे और अगर आप सुनोगे, सही में परमेश्वर का ये वचन है। मैं ऐसे विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए आपकी जो नजरिया है वो बदल जाएगा और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। ये 3 वचनों पर हम देखेंगे, 3 बातों पर हम देखेंगे। बाइबल कहती है अच्छे से अच्छा वस्त्र। आपको पता है वस्त्र क्या दर्शाता है? वस्त्र जो है वो धार्मिकता दर्शाता है। बाइबल बताती है पुराने नियम में कि मनुष्य की जो धार्मिकता है वो एक फटे हुए चिंदी के समान है। चिंदी क्या है? एक वस्त्र है। प्रियो, ये जो वस्त्र यहां पर लिखा है वो परमेश्वर की धार्मिकता दर्शाता है और परमेश्वर जो है अपनी धार्मिकता जो है वो हमें देना चाहता है। परमेश्वर जो है हर एक गंदे बातों से हमें धोकर निकालकर उसकी खुद की धार्मिकता देना चाहता है।
मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत सी बार इस एग्जाम्पल को देता हूं। और ये अगर एग्जाम्पल आप सुनोगे, परमेश्वर आपके कितने करीब है, परमेश्वर किस तौर पर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको पता लगेगा। मैं ये एग्जाम्पल दूंगा और बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान देकर सुने। अगर आप फेसबुक पर मेरे साथ जुड़ रहे हो तो आप जुड़े रहे, इस वीडियो को शेयर करें और जो मैं बातें कह रहा हूं उन सारी बातों पर अमल करें और उन सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। ये एग्जाम्पल ऐसे है, समझो कि अगले महीने में मेरी शादी है। मैंने कहा समझो, एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है हो चुकी है। और मैं बहुत ही इस वैवाहिक जीवन में बहुत ही ब्लेस हूँ, आशीषित हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, बट ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे समझो कि नेक्स्ट मंथ में, अगले महीने में मेरी शादी है और उस शादी का इनविटेशन जो है, आमंत्रण जो मैं आप सभी को दूंगा, जितने लोग मुझे इस जूम मीट पर मिले हैं और जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं मेरी शादी का आमंत्रण दूंगा। बट शर्त ये है कि मेरी शादी में जो मैं कपड़े दूंगा वही कपड़े आपको पहन कर आना है। और उस शर्त के साथ ऐसे है कि जो कपड़े मैंने दिए हैं उसी कपड़ों के साथ आपको आपके जॉब पर, आपके बिजनेस पर, अगर जो भी आप करते हो, अगर आप स्कूल जाते हो उसी कपड़े पर, अगर आप कॉलेज जाते हो उसी कपड़े पर सुबह आपको घर से निकलना है और शाम को मेरी शादी में आपको उसी कपड़े पर आना है। ये शर्त है। बट कपड़े किस तौर पर है मैं आपको बताऊंगा। कपड़े इस तौर पर रहेंगे, अगर आप ब्रदर हो तो आपको व्हाइट शर्ट दिया जाएगा, इतना व्हाइट, बहुत ही शुभ्र, उजाला 4 बूंदों वाले से भी शुभ्र, रिन पाउडर से भी शुभ्र, इतना सफेद वस्त्र मैं आपको दूंगा जो रास्ते पर अगर आप चलोगे तो वो चमकेगा। ओके, तो इतना शुभ्र वस्त्र मैं आपको दूंगा। आपको एक व्हाइट कलर का ब्लेजर रहेगा, आपके जो शूज होंगे वो भी आपके साइज के व्हाइट कलर के रहेंगे, आपका जो पहनावा होगा पूरी तौर पर व्हाइट कलर का रहेगा। अगर आप सिस्टर हो तो सिस्टर के लिए मैं आपको अगर कोई साड़ी पहनता तो उनको मैं साड़ी दूंगा, और जो अगर कोई ड्रेस पहनता उनको मैं ड्रेस दूंगा। जैसी भी आपको आपकी इच्छा है, जैसी भी आप पहनते हो, है ना। बहुत सारे लोग अनारकली, फनारकली, कुछ बहुत सारे ड्रेस के नाम होते हैं, तो उस तौर पर आप सिला सकते हो। बट वो जो कपड़ा है पूरी तौर पर शुभ्र रहेगा, पूरी तौर पर व्हाइट रहेगा। क्या आप सभी लोग सुन रहे हो? यस। तो शर्त ये है कि वही कपड़े पहनकर आपको, जैसे आप काम पर जाते हो, ट्रेन से ट्रैवल करते हो, बस से ट्रैवल करते हो, अगर आपकी खुद की गाड़ी है, अगर आप 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हो तो आपको वही कपड़े पहनकर काम पर जाना है। जो भी काम निपटा कर आपको शाम को मेरी शादी में आना है। अभी आप सोचो, अगर आपने वो शुभ्र वस्त्र पहने हैं तो अगर आप डेली, हर रोज की तौर पर अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आप वो कपड़ा पहनकर कभी आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे? You would like to travel in train? No, हम नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा। अगर आप हर रोज की जिंदगी में अगर आप बस से ट्रैवल करते हो, क्या आप बस से ट्रैवल करोगे? नहीं। अगर आप हर रोज आपके ऑफिस के बाहर, आपके दुकान के बाहर एक ठेला है जहां पर आप रोज चाय पीते हो, 7 रुपए 8 रुपए कटिंग वाला, आप वो कपड़े पहनकर क्या आप उस ठेले पर जाकर चाय पियोगे? नहीं। अगर किसी ने कहा कि आपको एक कुर्सी पर बैठना है तो आप वो कपड़े पहनकर ऐसे जाकर बैठ जाओगे? हम अपना रुमाल निकालेंगे, उस कुर्सी को पहले पोंछ लेंगे कि यार कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए यार। Am I right? यस। तो हम अपने पहनावे के अनुसार जो है, हमारी सोच बन रही है कि हमारे कपड़े थोड़ी भी गंदे नहीं होने चाहिए। अगर हम कीचड़ से चल रहे हैं, कीचड़ के साइड से एकदम बी केयरफुल होके चलेंगे, है ना। सो उस दिन हम कैसे सोचेंगे, नहीं यार आज क्या करता हूं, मैं कैब बुक करता हूं, आज मैं ओला से जाता हूं, वो भी प्राइम वाला या फिर थोड़ा कॉस्टली वाला रहना चाहिए। एक दिन का तो बात है, सद्दाम भाई की, हुसैन भाई की शादी में जाना है। सो ऐसे हम सोच के क्या करेंगे ना, नहीं, उस दिन में आप बहुत ही क्लीन और बहुत ही नीट एंड क्लीन रहोगे, ज्यादा पसीना भी आने नहीं दोगे, घड़ी घड़ी पहुंचोगे और बहुत सारी चीज आप करोगे। अभी आप सोचो, नॉर्मल आप घर पर हो,
जो भी महिलाएं नाइटी पहनती है, मैक्सी पहनती है, या फिर बॉयज जो है वो हाफ पैंट पहनते हैं ना, नॉर्मल टी शर्ट रहता है, कोई सैंडो पहनता है ना घर पे। आप जब घर के कपड़े पहनते हो तो आप जो है कहीं पर भी बैठ सकते हो, नीचे जमीन पर, हमारे घर पर हम यूं ही बैठ जाते हैं, है ना, जमीन पर बैठ जाते हैं, या फिर किसी ग्राउंड में अगर हम जाते हैं, घास होती है तो घास पर भी बैठ जाते हैं, किसी बगीचे में जाते हैं तो घास पर बैठ जाते हैं आराम से, है ना। कुछ कुछ तो स्त्रियां ऐसे करते हैं ना, अपने बच्चे के नाक में अगर शेमूड आता है ना तो वो अपनी मैक्सी से पोंछ भी लेते हैं, है ना। तो अभी आप सोचो, दो बातें मैंने आपसे कही। तो पहली बातें जो थी, जो वस्त्र के बारे में, जो बहुत ही शुभ्र है, व्हाइट है, और दूसरी बात ये कही कि जो अपने घर में जो यूज करते हैं वो कपड़े। तो आप सोचो, जैसे मैं कपड़ों के बारे में बोल रहा था, तो कपड़े की वजह से हमारे सोच पर विचार आ रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी तौर पर हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें जो है उसकी धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं। तो हम क्यों गलत बात करें, क्यों हम कीचड़ में जाए, क्यों हम पाप करें, क्यों हम गाली दे, क्यों हम किसी को बुरा भला कहे, क्यों हम गलत रास्ते पर चले, क्यों हम गलत लोगों के साथ चले, क्यों हम गलत संगति में रहे। जब भी आपके दिमाग में, जब भी आपके सोच में गलत चीज करने की बात आती है, तो हमें यह सोचना है कि परमेश्वर की मैं संतान हूं, परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी का नमक बनाया है, परमेश्वर ने मुझे अपना प्रकाश बनाया, परमेश्वर का राजदूत हूं मैं, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग का प्रतिनिधि बनाया, परमेश्वर ने मुझे उसकी संतान बनाया है। Amen. Amen. और अब हम पाप के आदि नहीं, क्योंकि खुदा की संतान हूं मैं। Yes. बहुत ही वचन अच्छा ना, वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आई एम नो लॉन्गर, है ना। Sleep to fear. बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, वो हिंदी का एक वर्जन है। अब मैं पाप के अधीन नहीं, खुदा की संतान हूं मैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जब भी आपके दिमाग में कुछ गलत बात करने के लिए होता है, अब यूथ लोग हैं तो ऑब्वियसली हम गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं। जब भी हमारे जीवन से ऐसे होता है, तब हमें कन्फेस करना है कि हमें जो वस्त्र खुदा ने दिए हैं, वो वस्त्र प्रभु की धार्मिकता के वस्त्र हैं। Amen. अगर हमें पता चले यार हम पहले से गंदे हैं, पापी है, तो लोग पाप करते रहेंगे, कीचड़ में धंसते ही जाएंगे। तो इसी तौर पर परमेश्वर ने हमें उसकी धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं। दूसरी बात, शायद से मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं मैं, दूसरी बात देखेंगे, हाथों में अंगूठी। अंगूठी, अंगूठी जो है वो दर्शाता है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार, अथॉरिटी। अंगूठी जो है ना, राजा महाराज अपने बच्चों को देते हैं, जो अंगूठी है ना, वो एक अथॉरिटी के तौर पर रहता है। परमेश्वर ने हमें जो है अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में रचा है। और बाइबल बताती है उत्पत्ति अध्याय 1:26 में कि उस खुदा ने हर एक जंतुओं को बनाया, उस खुदा ने हर एक प्राणियों को बनाया, आकाश के पक्षियों और समंदर की मछलियों, हर एक वस्तु को बनाकर उन सारी वस्तुओं पर मनुष्य को अधिकार दिया। बाइबल बताती है भजन संहिता 115-116 में कि स्वर्ग तो मेरा है, परमेश्वर यो कहता है कि स्वर्ग तो मेरा है पर पृथ्वी मैंने मनुष्यों को दी है। बाइबल बताती है भजन संहिता अध्याय 8:3 से अगर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को खुद से थोड़ा कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सिर पर रखा है। Amen. पाप किया तब उस वक्त क्या हुआ कि हर एक अथॉरिटी हमारे से छिन गई थी। पर यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, रोमियो के अनुसार यीशु मसीह जो दूसरा आदम हमारे खातिर आया, उसने कलवरी क्रूस पर जान दिया, जिस क्रूस पर हमें मरना था, उस क्रूस पर वो मरकर उन सारे अधिकारों को, उन सारे कीज को, उन सारे चाबियों को उस खुदा ने हमें दिया है। जैसे ये बेटा, जो छोटा वाला बेटा था, हर एक बातों को छोड़कर, अपने पिताजी को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूर देश में जाकर सारे पैसों को, सारे अधिकार को गवा दिया था। परमेश्वर ने उन सारे अधिकारों को हमें फिर से दिया है। और तीसरी बात यूं कहती है वचन, पाँव में जूतियां पहनाओ। आपको पता है जूते जो होते हैं ना, जूते, इसके बहुत सारे मीनिंग आते हैं, बट मैं आपको जो बताऊंगा वो थोड़ा अलग रहेगा। जूते जो होते हैं वो औधा दर्शाता है। औधा यानी पोजीशन, औधा। तो परमेश्वर ने
जिस ओहदे से हम गिरे थे आदम के समय में, उसी ओहदे पर परमेश्वर हमें फिर से रखा है। जैसे ये लड़का जो है, जिस ओहदे से वो गिरा था, उस पिता ने जो है उसी ओहदे पर उस लड़के को रखा। ओहदे पर रखा तो रखा, बट आपको पता है जो जूता क्या काम करता है? बाइबल बताती है कि सुसमाचार के जूते पहनाओ। आपको पता है ये लड़का जो है ना, जब इसको जूते पहनाए गए, जब इसको ये सारे अधिकार दिए गए, जब इसको वस्त्र दिए गए, आपको पता है कि आपको लगता है कि उसने अपने पिताजी की भलाई को कितने लोगों को बताया होगा? ऑब्वियसली उस बेटे ने बहुत सारे लोगों को मेरा पिता कितना भला है, मेरा पिता कितना कृपालु है, मेरा पिता कितना प्रेमी है, बहुत सारे लोगों को उसने बताया होगा। फिर आज हमें यही बात करनी है कि हमारा पिता कितना ग्रेशियस है, हमारा पिता कितना हमसे मोहब्बत करता है, उस खुदा ने हमें किस तौर पर हमें बचाया है, उस खुदा ने हमें किस तौर पर छुड़ाया है। उन सारी बातों को हमें लोगों को बताना है। हालेलुया। तो ये Hallelujah. 3 बात हमें बहुत गौर करनी है। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे हमने इस कहानी को पढ़ा, इस कहानी में ऐसा लिखा है कि उड़ाओ पुत्र, बट आपको पता है अगर आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पुत्र नहीं उड़ा रहा है, यहाँ पर पिता उड़ा रहा है। बाद में दूसरा बेटा, बड़ा बेटा आकर बोलता है कि मैं इतने साल से तेरी सेवा कर रहा हूं, तू मेरे लिए एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। जब वो आता है तो वो गाने बजाने की आवाज को सुनता है ना, जश्न होता है ना, वो जश्न की आवाज सुनता है और वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वो कहता है छोटे बेटे ने तेरे सारे संपत्ति को बर्बाद कर दिया और वो आने के बाद तू इतना आनंद मना रहा है। और पिताजी उसे बाहर आकर मनाता है ना। तो उसी तौर पर जो है ना, हमें इस प्रभु की अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के जल्लोष में, प्रभु की हैप्पीनेस में हमें मनाना है, हमें एंटर करना है और प्रभु के साथ हमें ये करना है। एक कहानी में बताऊंगा, आप ध्यान देकर सुने। अगर आप मुझे फिर से एक बार मैं कहता हूं, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं आप जुड़े रहे, अगर आप मुझे जूम पर देख रहे तो आप जुड़े रहे और इस कहानी को आप ध्यान देकर सुने। मैं जैसे इस का पुत्र की कहानी बताई मैं और एक पुत्र की कहानी बताऊंगा आपको। एक लड़का था जो मुस्लिम था, उसने कैसे तो करके एक हिंदू लड़की से शादी की, और जैसे उन्होंने शादी की, भागकर शादी की थी ऑब्वियसली। तो जो कैसे होता है ना, ये हिंदू मुस्लिम बहुत सारे झगड़े लफड़े होते हैं, बट ये दोनों ने, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का, शादी करके इस झगड़े को ही मिटा दिया था, क्योंकि वो लोग भाग गए थे। और कुछ समय ऐसे होता है, वो लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत ही फाइन रहते हैं, और धीरे धीरे कर कर उनके परिवार में उन्हें बच्चे होते हैं, है ना। 2 लड़कियां होती है, एक के बाद एक और एक लड़कियां होती है। उसके बाद तीसरा जो है ना, एक लड़का होता है, उसके बाद और एक लड़का होता है। तो कुल मिला के इस परिवार में 4 बच्चे, मम्मी और डैडी, ये करीबन 6 लोगों का परिवार। तो धीरे धीरे करके उनका परिवार बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ समय ऐसा होता है, इस परिवार में एक दुखद बात होती है। एक ऐसा, इस परिवार पर एक पहाड़ टूट पड़ता है जब ये तीसरा लड़का जब पैदा होता है ना, तीसरा, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड बॉय। 2 लड़कियां पहले हुई, तीसरा लड़का, जब ये लड़का पैदा हुआ तब वो मर रहा था, यानी उसके शरीर में खून की कमी होने के कारण वो लड़का मर रहा था। तो कैसे तो करके परमेश्वर ने, हम कह सकते हैं ना, उसे बचा लिया। आपको पता है जब हम मूवीज देखते हैं 90s के जमाने में, जब हम मूवीज देखते थे ना, एक मूवी याद है मुझे, अमर अकबर एंथनी। उस मूवी में अगर हम देखेंगे ना, तो जो माँ होती है, उस माँ को अपने बच्चे ऐसे मतलब खून देते हैं। आपने कभी देखा है उस ऐसे घटना को? मतलब यहाँ से खून निकल रहा है और दूसरे पेशेंट में जा रहा है। उसी तौर पर उस बच्चे को, जो थर्ड लड़का है, वो थर्ड बच्चे को जो है ना, वो खून देते, उसका पिताजी जो है वो खुद खून देता है, और उस समय जो है ना, वो लड़का ठीक हो जाता है, मतलब वो मरता नहीं है। आपको पता है जब भी किसी के जीवन में पैदा होते ही प्रॉब्लम शुरू होते हैं ना, तब समझ लेना है कि परमेश्वर की महान योजना उनके जीवन में है। क्योंकि आपको पता है, शैतान बहुत अच्छी रीति से जानता है कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है बड़ा होकर कुछ महान करेगा परमेश्वर के लिए। इसलिए शैतान जो है ना, बचपन से हाथ पांव मुंह सर सब धो के उस बच्चे के पीछे लग जाता है।
पर आपको पता है, जब भी परेशानी आती है, परेशानी को हमें नहीं देखना है, परेशानी के बाद जो आने वाला है उसे हमें देखना है। तो कैसे तो करके वो बच्चा अच्छा रहा। तो वो 4 बच्चे, एक माँ और पिताजी, ये 6 जन का परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा था। इस परिवार में एक दूसरा धक्का लगा। वैसे था कि ये जो 4 बच्चे और एक माँ को, ये 5 जन को छोड़कर उनके पिताजी दूर देश चले जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। जैसे ये छोटे बेटे ने अपने पिताजी को, अपने परिवार को छोड़कर चला गया, उसी तौर पर इस परिवार में भी 4 बच्चों को, एक माँ को छोड़कर एक पिताजी चले जाते हैं। आप सोच सकते हैं इस परिवार पर क्या बीती होगी। इवन वी कैन नॉट इमेजिन कि वो परिवार किस हालत में गुजरा होगा। 4 बच्चों को संभालना ना आसान नहीं है, फिर भी उस माँ ने जो है ना ढाढ़स को बांधा और उन 4 बच्चों को उसकी हैसियत के अनुसार उन 4 बच्चों को पढ़ाया लिखाया। वेजिटेबल्स, शी यूज्ड टू सेल वेजिटेबल्स, भाजी को बेचकर उसने उन 4 बच्चों को संभाला, उनकी परवरिश की। ये 4 बच्चों को उन्होंने संभाला। आपको पता है हाल ही में कैसे है ना, बहुत सारे लोग है ना, हमारे दो बच्चों में बहुत ही हेक्टिक हो जाता है यार, 2 बच्चों का स्कूल है, ये वो है। पर आपको सोचो उस समय, मैं करीबन 26-27 साल पुरानी बात बोल रहा हूं मैं, कि वो माँ ने अपने 4 बच्चों को कैसे संभाला होगा। आपको पता है उस परिवार ने ऐसे दिन देखे ना, वो परिवार रोड पर भी सोया था। They used to sleep on the street. ऐसे मतलब ऑलमोस्ट भिखारी लोग जो रहते हैं ना, जो लोग मांग कर खाते हैं, वैसे उस परिवार की हालत हुई थी। वो परिवार तो मुस्लिम था, और क्षमा करें इस बात के लिए, बट बहुत सारे ऐसे केसेस है कि ना, मुस्लिम जो बॉय होता है, मुस्लिम जो आदमी होता है, वो शादी करके बहुत बच्चों को, पत्नी को छोड़कर चले, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। बट वो हमारा टॉपिक नहीं है। बट सोचो कि 4 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हुआ होगा उनके लिए। बहुत ही तकलीफ से उस माँ ने बच्चों को संभाला। धीरे धीरे करके वो बच्चे बड़े होते रहे, है ना, धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होते रहे, और उनके जीवन में ना एक टर्निंग पॉइंट आया, जहां पर उस परिवार को यीशु मसीह ने चुन लिया। उस परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया, और उस परिवार का उद्धार हो गया। उद्धार की स्टोरी ऐसे है कि, जो मैंने पहले कहा कि 2 लड़कियां पैदा हुई थी, उसकी जो सेकंड नंबर की जो लड़की थी, वो बहुत ही बीमार थी। इतनी बीमार थी, उसको 3 बीमारी एक साथ हुई थी, मलेरिया, टाइफाइड और निमोनिया। ये 3 बीमारी उस समय 10, 12, 15 साल के पहले बात कर रहा हूं मैं, तीनों भी बीमारी एक साथ हुई थी। परमेश्वर ने उसे बचाया। एक्चुअली जब भी डॉक्टर्स लोग जो है ना उसका ट्रीटमेंट करते थे ना, बीमारी तो रिपोर्ट्स में दिखाती थी, बट ट्रीटमेंट जब शुरू करते तो गोलियों का असर उस लड़की पे नहीं होता था। आपको पता है, ये जो परिवार जो है ना, इस परिवार पर एक बीमारी का शाप था। इस परिवार में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार पड़ता था। आपको पता है, उस परिवार को उनके फैमिली के नजदीक जो हॉस्पिटल है, जो खैराती दवाखाना जिसे हम कहते हैं, है ना, म्युनिसिपैलिटी का दवाखाना होता है, उस म्युनिसिपैलिटी के जो दवाखाने के जो स्टाफ होते थे ना, नर्स, डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, वो सारे स्टाफ जो इस परिवार को बहुत ही अच्छे रीति से जानते थे। पता है क्यों? रोज का है, दे डेली यूज टू गो, मतलब रोज उन लोग का कुछ ना कुछ बीमार है। कभी छोटा वाला टिफिन लेके गया ना, अरे क्या हो गया, कौन है, अरे मम्मी है। कभी मम्मी टिफिन, अरे नहीं, कल परसों के दिन बड़ी वाली थी ना, अभी छोटी वाली है। मतलब इस तौर पर उसके परिवार में बहुत ही बीमारी। तो जो दूसरी लड़की है, वो दूसरी लड़की बहुत बीमार थी और बहुत ही तकलीफ में थी। तो जब उसके लिए प्रार्थना की गई, तो उसके जीवन में एक बॉन्डेज था जो उसको जकड़े रखा था, और उसी समय में प्रियो, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया और उनके पूरे परिवार को चंगा किया, पूरे परिवार को हील किया। आज तक उनके परिवार में ऐसे बड़ा बीमारी कभी नहीं हुआ है। आज तक वो परिवार बहुत ही ठीक है। उस परिवार का पूरा उद्धार हो गया। और आपको पता है, जैसे मैंने कहा, जो तीसरा लड़का जो मरने पर था, जो बचपन में,
वो लड़का बहुत जिद्दी था, वो बहुत ही लड़का बदमाश था। और वो लड़का क्या करता था ना, ये सारे लोग कलीसिया जाते नहीं, ये तीसरा लड़का नहीं मानता था, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, यीशु मसीह को नहीं मानता था। वो लोग मुस्लिम परिवार से थे तो वो चिढ़ाता था, है ना, क्या यार अपना सब जात धर्म छोड़ के तुम लोग उधर जाते क्या, हालेलुया हालेलुया क्या तुम भी बोलते, ऐसा ऐसा बोलता था। बट ये जो लड़का जो था ना, व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत ही दिक्कतों में था, परेशानी में था, बहुत तकलीफ में था। पर आपको पता है ये परिवार का पूरा उद्धार हो गया। ये जो तीसरा लड़का है ना, सबसे लास्ट, सबसे आखिर में प्रभु में आया। और ये पूरा परिवार जब हर संडे को चर्च में जाता था, तो ये लड़का नहीं जाता था, बहुत जिद्दी था ना, छोटा ही था बट बहुत जिद्दी था। और वो लड़का इतना बदमाश था ना कि स्कूल में झगड़े करने में आगे, बचका नहीं था, बहुत ही छोटा ही था, नशा करता था, गलत संगति में था, मारामारी करता था बहुत। और जब स्कूल में जब झगड़ा होता था ना, पहले वो लड़के को आगे कर दे, तू एक कान के नीचे दे फिर हम लोग मारेंगे। इस तौर पर ये लड़का था, बहुत शरारती था, और उसकी शरारतें मतलब कमी नहीं होती थी। तो सबसे अंत में वो किस तौर पर प्रभु में आया कि हर संडे जैसे उसका परिवार जो है ना कलीसिया जाता था, तो वो हर संडे वो लड़का देखता था क्या रे, हर संडे लोग मस्त कपड़ा बपड़ा पहन के, पाउडर वुडर लगा के मस्त चकाचक एकदम चर्च में जाता है। करीबन 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, ऐसे महीने गुजरते गए। ये लड़के का जीवन जो है बहुत ही अंधेरे में था, ये लड़के का जीवन बहुत ही परेशानी में था, व्यक्तिगत तौर पर इसका जीवन बहुत ही गंदा था। और उसने देखा धीरे धीरे उनके परिवार में जो है एक खुशी का माहौल आने लगा। उनके परिवार में जो है ना एक प्रभु की शांति आने लगी। उनके परिवार में जो है ना एक शालोम आने लगा। उसके परिवार में उसके जो रिश्तेदार थे, मतलब उसके बहन और जो मम्मी थी, वो लोग के चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी। ये लड़के ने बैठकर ऑब्जर्व किया, नोटिस किया। ये लड़के ने जो है ना उन चारों के चेहरे पर, जो 2 बहनें और एक लड़का और एक माँ, चारों के चेहरे पर एक ऐसा नूर देखा, एक ऐसी चमक देखी जो उसने कहीं नहीं देखी थी। और एकदम आखिर में ये लड़का प्रभु में आया, और आज जो है वो लड़का जो है ना वो चारों से आगे है। वाओ, वो चारों से आगे है, और प्रभु उसका बहुत इस्तेमाल कर रहा है ना। और प्रभु ने उसे बिजनेस दिया, बिजनेस के तौर पर प्रभु ने उसको इतना ब्लेस किया कि वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बार न्यूज़पेपर में उसके आर्टिकल छपे। मतलब बहुत कम उम्र में कैसे उसने सक्सेस को पाया। 6 बार न्यूज़पेपर में आया, और परमेश्वर ने फाइनेंस के तौर पर बहुत ब्लेस किया। एक दिन था, है ना, वो उनका जीवन रास्ते पर था, भिखारी के जैसा था, है ना। और एक दिन आ गया कि परमेश्वर ने उसे बहुत ब्लेस किया। वो लड़के ने बिजनेस के दम पर, बिजनेस के इसके ऊपर उस खुदा ने इतने उसको इतना ब्लेस किया कि उसने बिजनेस करके अपनी 2 बड़ी बहनें थी ना उसकी, वो 2 बड़ी बहनें की अच्छे से धूमधाम में शादी की, खुद की शादी की, छोटे वाले भाई की शादी की। मुंबई सिटी में एकदम अच्छे से रहता है ना, बिजनेस के तौर पर आशीषित किया है। प्रभु ने सिर्फ बिजनेस के तौर पर ही नहीं, पर मिनिस्ट्री के तौर पर भी उसको आशीषित किया। वो आज शायद वो मतलब वर्शिप लीडर है, और परमेश्वर उसका इस्तेमाल पूरे भारत भर में कर रहा है। और वो सेवा करता है, ट्रेन्स में, बस में, विलेज मिनिस्ट्री वो करता है, और वो प्रीच करता है ना। वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है, और यूट्यूब पर भी बहुत सारे उसके गाने भी आते हैं। बहुत सारे लोग उसके गवाही के द्वारा, उसके कहानी के द्वारा, उसके प्रीचिंग्स के द्वारा, उसकी आराधना के द्वारा लोग ब्लेस हो रहे हैं। परमेश्वर उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को ब्लेस कर रहा है। और आज वो लड़का शायद 26 इयर्स ओल्ड, ही इज 26 इयर्स ओल्ड, और वो आज आपके सामने खड़ा है। उसका नाम हुसैन मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। So this is my story.
कि परमेश्वर ने किस तौर पर मुझे ब्लेस किया। तो आज मैं प्रभु को इतना धन्यवाद करता हूं कि उस खुदा ने मुझे उसके राज्य के लिए चुना। और आपको पता है, तकलीफें बहुत आई, दिक्कतें बहुत आई, परेशानियां बहुत हुई। आपको पता है, अगर मेरे पिताजी ने हमें छोड़ा नहीं होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता, आज मैं प्रभु के गवाही को यहाँ पर बताता नहीं होता, ना जाने कहां पर होता। पर प्रभु की ये जो योजना थी, प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा पूरी की। और प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे चुना। आपको पता है, करीबन जैसे मैं प्रभु में नया था, ये कहानी मैं आपको बताऊंगा। प्रभु में मैं नया था, फिर भी झगड़ा करता था, है ना, मतलब झगड़ा करता था। झगड़े में मेरी ये जो जबान है, ये जबान कट गई। Oh. ये जो मेरे दांत है ना, आगे के 4 के 5 है, 20 का पकड़ के 5 है टोटल। ये जो 4 दांत है ना, ये मेरे जबान में घुस गए थे। मेरे जबान पर 5 स्टिचेस लगे थे, 5 स्टिचेस लगे थे। मैं बहुत ही नया प्रभु में था। अगर आप देख सकते, पता नहीं, आप देख लो। कैन यू सी दैट? Yes. Yes. तो ऐसे है। तो 5 स्टिचेस लगे थे। मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं गूंगा हो जाऊंगा। मतलब उस समय मेरे 2-3 ऐसे गूंगे फ्रेंड्स थे, तो मैं ऐसे सोचता था कि अभी उनके साथ ही घूमना है अभी मुझे। जब मुझे वो हॉस्पिटल लेके गए थे तो मैं वो ही सोच रहा था। बट प्रभु की महिमा देखो कि जहां पर मैं सोच रहा था कि मैं गूंगा हो जाऊंगा, प्रभु ने मुझे उसका आराधक बनाया है। प्रभु ने एक Wow. सिंगर बनाया है ना। और इसी जबान का इस्तेमाल वो उसकी जलाली, उसकी आराधना, उसकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। Praise God. तो ये Hallelujah. मेरी कहानी है। और थोड़ा बचा है, 5 मिनट। आई विल शेयर दैट ऑल्सो, बिकॉज कैसे ना, आधा ज्ञान भी खतरे का होता है। आधी कहानी सुनकर लोग सोचेंगे आगे क्या हो गया। आपको पता है, मेरी ये दुआ थी कि जिस पिताजी ने हमारे परिवार को छोड़ा है, हाँ, जिसके द्वारा प्रभु ने मुझे इस दुनिया में आने के लिए जिसका इस्तेमाल किया है, मुझे एक बार तो उन्हें देखना है, मुझे उन्हें देखना है। प्रभु ने वो भी प्रार्थना मेरी सुन ली। हालेलुया। Hallelujah. और रिसेंटली मैं जाकर उन्हें मिला 2017 में। दैट स्टोरी इज वेरी इमोशनल, सो आफ्टर सम टाइम आई विल शेयर दैट। बट अगर यूट्यूब पर अगर आप देखोगे हुसैन मसीह करके, तो आपको वो स्टोरी पहले ही मिल जाएगी। तो ये जो स्टोरी है, परमेश्वर ने मुझे उन्हें भी मिलाया। और आपको पता है, मेरे पिताजी जो है मौलाना, मौलवी समझते हो, मौलाना जो कुरान पढ़ाता है। और यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर बाइबल पढ़ाता हूँ, बाइबल सिखाता हूँ। प्रभु की महान योजना है। और जब भी इस स्टोरी को मैं जब स्मरण करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे जो है ये वचन याद आता है, लूका इसका 15 अध्याय। जब वो गले मिले थे, जब मैं उनसे गले मिला था, वो मेरे चेहरे को चूम रहे थे, वो बहुत ही रो रहे थे। आपको पता है, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे आप माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। उन्हें बहुत बार मुझसे माफ मांगी। बट हम कौन होते हो यार, नहीं माफ करने वाले। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को माफ किया, तो हमें भी लोगों को माफ करना है। True. और मैंने उन्हें माफ किया। और यही कहानी। बट आपको पता है, ये कहानी और मेरी कहानी थोड़ी सेम है। बट यहाँ पर बेटा भाग गया था, मेरी कहानी में मेरा बाप भाग गया है। तो इस तौर पर मेरी कहानी है। प्रभु आप सभी को आशीष करे, जितने भी फेसबुक में लोग देख रहे हैं उन सभी को आशीष करे। और आगे का समय हम भाई रोनाल्डसन डेविड को देते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Yes. तो यस, बहुत अद्भुत कहानी है ये। और जैसे कि भाई हुसैन बता रहे थे कि उनके वो पिताजी के स्टोरी के बारे में, बहुत पहले जो है उन्होंने इस लिंक को मेरे साथ शेयर किया था। एंड मैं अगर हम ये कर सके, हम इस लिंक को जो है आपके हमारे अनवेल पेज पे भी हम शेयर करेंगे। आप उस जरूर इस स्टोरी को देखिए, क्योंकि Yes. इट्स अ हार्ट टचिंग स्टोरी। ये बोलते हैं ना, इतना सुपर स्टोरी है दैट हाउ आई मेट माय फादर आफ्टर 23 years। सो Yes. इस स्टोरी का टैगलाइन ये है। एंड बिफोर
आई कंटिन्यू, मैं अपने सारे फेसबुक व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, अगर आपके पास कोई भी सवाल है भाई हुसैन के लिए, आप प्लीज अपने सवाल को वहां पे कमेंट सेक्शन पे टाइप करें। सो रॉल्स्टन जो है क्वेश्चन को पढ़ के सुनाएंगे। तो कोई भी अगर वर्शिप रिलेटेड क्वेश्चंस है या लाइफ को लेके, इतनी अच्छी कहानी भाई हुसैन ने बताई है, लाइफ को लेके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करें कमेंट सेक्शन। तो यस, जैसे मैं बोल रही थी ब्रदर हुसैन, जैसे कि मैंने आपकी वो स्टोरी सुनी है, हाउ आई मेट माय फादर आफ्टर 23 इयर्स, एंड भाई हुसैन का ये डिजायर था, ये वो आशा रखे थे, होप रखे थे कि वो एक ना एक दिन उनके पिताजी को वो जरूर मिलेंगे, और वो उनकी चाहत थी, उनका डिजायर था दैट ही वांट्स टू सी हिज फादर। तो जब स्टोरी जब आप बता रहे हो, आपने बोला कि रायकोटा जैसे जगह में आप एक अपने दोस्त को मिले। सो मेरा जो सवाल है इस दोस्त के ऊपर है, जैसे कि प्रोवर्ब्स बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में भी बोलते हैं, चैप्टर 12 वर्स 26, कि righteous man is cautious in friendship and way of the wicked led them astray। तो आपको क्या लगता है, धर्मी व्यक्ति बहुत होशियार, मतलब बहुत बराबर रहता है कि किससे दोस्ती करना है और किससे नहीं? जैसे आपने भी बोला, आप जब आप आपके मम्मी और सिस्टर्स जब चर्च जाते थे, आप नहीं जाते थे, आप आपके दोस्तों के साथ मारा मारी, नशा, ये सब करते थे। तो आपको क्या लगता है? और हमेशा, सॉरी मेरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन मुझे ये भी बोलना है, कभी कभी हम एज अ यूथ हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमको हमारा संबंध सबके साथ जुड़ के रखना है, मतलब सभी के साथ अच्छा, वी वांट टू बी इन एवरीबॉडीज गुड बुक्स, ठीक है, हमको डिस्कनेक्ट नहीं करना है किसी से। तो ये सोच सही है या गलत है, या आपको क्या लगता है कि दोस्ती मैटर करता है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर में बढ़ने के लिए दोस्ती मैटर करता है? ओके, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आपने इस काबिल समझा कि मैं कुछ सवालों के जवाब दे सकूं, और आई एम रियली वांट टू गिव दिस आंसर टू यू। जैसे हम मसीहत में हैं, सो ये मैटर करता है कि हमारे दोस्त कौन है ना, कैसे है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन अध्याय 13, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 verse 20. Can anybody read from there? Sister, can you read? Yeah. Proverbs chapter 13 verse 13 verse 20, he who 20. walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffer harm। ओके, तो हिंदी अनुवाद जो कहता है ना, वो बहुत ही मुझे पसंद है। बाइबल यहाँ पर लिखती है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। और सेकंड जो आगे का लाइन है वो बहुत ही खतरनाक है, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बाइबल यहाँ पर ऐसे नहीं कहता है ना कि बुद्धिमान के साथ रह तो बुद्धिमान बन जाएगा और मूर्खों के साथ रहेगा तो मूर्ख बन जाएगा। बाइबल ऐसे नहीं कहता है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि अगर तू बुद्धिमान के साथ रहेगा तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, अगर तू मूर्खों के साथ रहेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें मूर्खों के साथ नहीं रहना है या फिर हमें वैसे फ्रेंड्स नहीं बनाना है, बट फ्रेंडशिप करना, फ्रेंड्स बनाना और जान पहचान रखना और उनकी संगति में रहना, दैट इज वेरी डिफरेंट। हमारे दोस्त बहुत हो सकते हैं, है ना, बहुत से अनबिलीवर्स दोस्त हो सकते हैं, बहुत से बिलीवर्स दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे बिलीवर्स भी मूर्खों जैसी मतलब बर्ताव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। बहुत से अनबिलीवर्स भी मूर्खों जैसा बर्ताव करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। बहुत सारे अनबिलीवर्स भी अच्छी सोच रखने वाले भी होते हैं। तो मेरा ये मानना, मेरा ये ओपिनियन है कि हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, है ना, मतलब वी कैन डू फ्रेंडशिप विथ ऑल, लाइक अनबिलीवर्स भी। अगर हम उनके साथ फ्रेंडशिप ही नहीं करेंगे तो हम उनको प्रभु में जीतेंगे कैसे? तो हमें फ्रेंडशिप करना है, बट हमें उनकी संगति में नहीं रहना। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है जो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, हम उनकी संगति में अगर रहते हैं
तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज बाइबल कहता है कि अगर उनके संगति में अगर हम रहते हैं तो हम जो है नाश हो जाएंगे, हम नष्ट हो सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे लाइफ में बहुत ही गिने चुने फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही क्लोज है और वो बिलीवर्स है, तो कोई भी अनबिलीवर फ्रेंड मेरा क्लोज नहीं है, बट दे आर माय फ्रेंड्स। Oh, even I share gospel with them. I sit with, so उनके साथ मैं उठना बैठना मेरा उनके साथ रहता है, घूमना भी रहता है। स्कूल फ्रेंड्स का अलग ग्रुप रहता है ना, जो हमारे टीनेजर से उनका अलग ग्रुप रहता है, शादी के बाद वाले ग्रुप्स अलग है बहुत सारे ग्रुप्स है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ संगति कर रहा हूँ, मैं उनके साथ फ्रेंडशिप है। हमें Okay. फ्रेंडशिप इसीलिए रखना है कि ताकि हम उसको प्रभु के लिए जीत सके। अभी देखो, भले ही मैं प्रभु में नहीं था, तो मेरे फ्रेंड्स अनबिलीवर्स थे। जब मैंने मेरी परिवार में वो बात को देखा कि यार खुशी यहाँ पर मिल रही है, सो मैंने मेरे परिवार को ज्वाइन किया, मैंने मेरे परिवार की संगति में ज्वाइन किया, क्योंकि परिवार जो तो वो विश्वासी हो गया था। परिवार जो वो बुद्धिमान था कि वो उन्हें बुद्धि की ज्ञान थी कि क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना। इसीलिए उन्होंने हर एक गॉड को, हर एक रिलीजन को रिजेक्ट करके यीशु मसीह एक जीवन है, जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसे उन्होंने चुना। और ये जो निर्णय है यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना, ये जो निर्णय है, ये बुद्धिमान का निर्णय है। ऑब्वियसली ये बुद्धिमान का निर्णय है, और ऐसे लोगों के साथ हमें रहना है जो बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, नहीं मैं उनके साथ सिर्फ मैं बैठता हूँ उठता हूँ, बट मैं उनके साथ में आपका नहीं रहता वॉइस हूँ। ब्रेक हो रहा है ब्रदर हुसैन। हाय, अभी आ रहा है? हाय। सो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ना कि मैं बिलीवर हूं, बट मैं उनके साथ जो हूं, मैं ड्रिंक के साथ बैठा हूं, उन लोग ड्रिंक कर रहे हैं बट मैं बैठा हूं, मेरा मुझ पर बहुत कंट्रोल है, मैंने ड्रिंक करूंगा। दैट इज रॉन्ग। मैं बाहर में चले जाऊंगा, मैं बिलीवर हूं, मैं बाहर में जाऊंगा, मेरी संगति वो अलग है, बट मैं उनके साथ में नहीं हूं, मैं उनके साथ सिर्फ गया था। दैट इज रॉन्ग। सो हमारी जो संगति है वो धर्मी लोगों के साथ रहनी है, जिसको मतलब प्रभु ने जिसका उद्धार किया है, प्रॉपर उद्धार किया हुआ है, उनके साथ ही हमें उठना बैठना है ना, आराधना सेवा करना है। ये मेरा ओपिनियन, मेरी तरफ से ऐसा रहेगा। यस, बहुत अच्छा आंसर दिया है भाई हुसैन ने, क्योंकि एसोसिएशन मैटर्स, एसोसिएशन बहुत मैटर करता है कि आप किसके साथ, जैसे उन्होंने कहा कि दोस्ती रखने में इशू नहीं है, व्हेन यू टू मच ड्वेल विद दोस फ्रेंड्स इट्स अ प्रॉब्लम एंड इट कुड ब्रिंग अ हार्म टू योर लाइफ। ओके, सो रॉल्स्टन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस बिफोर वी फिनिश दिस सेशन? यहाँ पे क्वेश्चन आया है जैसा, डू मुस्लिम्स एक्सेप्ट क्राइस्ट when you share the gospel to them? What is their point of view for Jesus Christ? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग ब्रदर, कि आई एम फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, बट आई वाज नॉट born and brought up in मुस्लिम कल्चर और मुस्लिम पीपल। एक्चुअली मेरा जो उठना बैठना हिंदू लोगों में था, बिकॉज माय मदर वाज हिंदू। सो मराठी जो लोग है ना, उनमें मेरा उठना बैठना था। तो बहुत सारे लोग जो है ना मुस्लिम कम मिलते थे, बट व्हेन आई शेयर्ड गॉस्पेल विद द मुस्लिम गाय, दे यूज्ड टू आर्ग्यू विद मी कि the Jesus is not the God, he was the prophet of God, he was Nabi and all. But what I think, instead of arguing with them, we can win them with love. I believe like this. Wow, well said. मतलब कैसे होता है ना, मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते रहेगा, वो 10 सवाल पूछेगा, मैं 10 जवाब देगा, और वहां पे झगड़ा क्रिएट हो सकता है। बिकॉज बाइबल इटसेल्फ सेज कि उत्पत्ति में बाइबल कहती है कि जब अब्राहम के 2 बेटे थे, इश्माइल और इसहाक जो था वो वाचा का बेटा था, और इश्माइल के बारे में स्पेशली बाइबल कहता है कि वो जो है तलवार से जिएगा। You know that word brother? तलवार से, that means वो जो है तलवार से जिएगा। it says like उनके अंदर जो है, मुस्लिम जो लोग होते हैं उनके अंदर है ना झगड़े की भावना ज्यादा होती है, वो मारने काटने पर आते हैं, तुलते डायरेक्ट। तो जब भी मुस्लिम लोग होते हैं ना, अगर हम
उनके अल्लाह के विषय में अगर कुछ बुरा भला कहे तो वो तुरंत तू अल्लाह की तौहीन कर रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, तू इनको ये कर रहा है, तुझे ये होगा, तुझे जहन्नम मिलेगा, ये दिस दैट, वो सब ही करते हैं। बट आई बिलीव अगर हमारा चरित्र, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो जीवन है, अगर हम खुदा के प्यार में उसे लिपटे रहे तो हमारी जिंदगी को देखकर वो मुस्लिम वो खींचा चलाएगा। क्योंकि मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, दे आर हंग्री फॉर लव। वो जो है ना, आप देखो, मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, अगर किसी मुस्लिम बंदे से अगर प्यार से बात करे, बात ओनली स्पीक, डोंट शेयर गॉस्पेल, जस्ट स्पीक विद लव, जब हम उनसे मोहब्बत से कुछ भी बात करते हैं ना, बस वो बोलेंगे यार यार तू अपना दोस्त बन गया यार। तो अगर आप मेरी डैड वाली कहानी सुनोगे ना, वहां पर मैं एक मुस्लिम विलेज में गया था, एंड आई स्पीक विथ लव विद द पीपल, और वो जो लोगों में मैं घुला, जब मैं एक्चुअली मेरा लुक जो था, मेरा जो पहनावा, तो वो मुंबई जैसे था, है ना, बट जब मैंने बातें की प्यार से, मोहब्बत से, तो मैं उनमें घुला, और उन्होंने मुझे ना बहुत ही कन्विंस करने के बाद, उनको है ना बहुत ही समझाने के बाद उन्होंने मुझे मेरे पिताजी से मिला। तो आई बिलीव, पर्सनली आई बिलीव कि उनको गॉस्पेल बताए, बट आर्ग्यूमेंट ना करें। आर्ग्यूमेंट लीड्स टू फाइटिंग। आर्ग्यूमेंट्स जो है, हमें जो है रिलीजन के यहाँ पर लीड होता है, और जहां पर रिलीजन आता है वहां पर झगड़े और लफड़े, दंगे प्रसाद होते हैं। Yes. ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। सो हमें उन्हें Yes, very well प्यार said से actually. जीतना है। Hmm. यस ब्रदर, Yes. आर यू सेटिस्फाइड ब्रदर? Yes, yes, perfectly. Yeah. ओके ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। Yes, yes. Yeah, so very well said. Arguments नहीं करना है. I just want to conclude over here what Brother Hussain said for this answer. इस आंसर को उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि हमको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है. Let your life be your living testimony. आपके चाल चलन से उनका जीवन बदलने दो. आर्ग्यूमेंट से आप किसी को जीत नहीं सकते. It is end of the day, it is only the Lord who will convict hearts, not us. We are not the savior. So get this right in your मतलब अपने दिमाग में ये बिठा ले कि हम लोग सेवियर नहीं है, हम लोग किसी का जीवन को ये नहीं, परमेश्वर की और वो आर्ग्यूमेंट करके या फिर ना ये सब करके हम किसी को परमेश्वर में नहीं ये कर सकते, या परमेश्वर का प्रेम नहीं दर्शा सकते. हम एक ही चीज से दर्शा सकते हैं, वो है हमारा जीवन. और जैसे उन्होंने बोला कि वो एक गांव में गए थे तो उन्होंने सिर्फ प्यार से बात किया ना, स्पीक विथ लव. तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. इंस्टेड दे में आपका मजाक उड़ाएंगे, अरे इसके पास तो आंसर ही नहीं है, ठीक है, बट डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स एंड डोंट ट्राई टू विन द आर्ग्यूमेंट एंड लेट नॉट योर ईगो हर्ट. दैट्स द मेन थिंग आई वुड से. So before Ralston, do you have anything else to ask? No, Or you're done? Yeah, done. Yeah. Okay. So before we finish this session, before we sign off, हम चाहते हैं कि ब्रदर हुसैन जो है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें. Okay. So over to you, brother Hussain. Yeah. और थैंक यू सो मच इस पेज का और इस पूरे टीम का, अनवेल टीम का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं. और सही में जो बात आप कर रहे हो दैट इज अमेजिंग कि बहुत सारे वर्शिपर्स को देखते हैं, बहुत सारे प्रचारक को देखते हैं, बट आप उनके साथ ये जो वार्तालाप करते हैं ये बहुत ही कम लोग करते हैं, है ना. और अच्छा लगता है जब बहुत सारे वर्शिपर की जिंदगी के बारे में लोग, है ना, जानेंगे, सीखेंगे. वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. हमारी दुआ आपके साथ है और पूरे अनवेल टीम को हम थैंक यू कहते हैं तहे दिल से हमें इनवाइट करने के लिए. और सिस्टर, मैंने आपको कहा था कि ना, मैंने लाइव जो लेना जो कम किया था बिकॉज आई एम बिजी इन सर्टन थिंग्स. सो बट पता नहीं क्यों मैंने ये जो सेशन लिया, बिकॉज बहुत सारे लोग है ना वर्शिप के लिए बुलाते, प्रीचिंग के लिए भी बुलाते हैं, बट ये जो कॉन्सेप्ट जब मैंने सुना सो मैं बहुत ही खुश हुआ. और थैंक यू सो मच सिस्टर प्रीति, और भाई आपको भी धन्यवाद. सो जितने भी लोग फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं उन सारे लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप
हमारे साथ जुड़े रहे, प्रभु के वचनों को सुने और मेरे जिंदगी की गवाही को आपने सुनकर प्रभु की महिमा की। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप शेयर करें, इस पेज को आप लाइक करें और बहुत सारे फ्रेंड्स को आप शेयर करें, और जिनको भी सुनना है कि मुस्लिम परिवार से कैसे प्रभु ने मुझे चुना है, मेरी गवाही को आप शेयर कर सकते हैं। और इस पेज को आप फॉलो करें, है ना। और फॉलो करने के बाद और एक ऑप्शन आता है कि अगर आप फॉलोइंग में जाओगे तो वहां पर सी फर्स्ट करके भी आता है, तो आप सी फर्स्ट करें ताकि हमारा ये पेज पे जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको सबसे पहले पहुंचे। ओके, फेसबुक पर भी ऐसे रहता है Wow. और यूट्यूब पर भी रहता है। यूट्यूब में आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ता है, यहाँ पर आपको फर्स्ट सी फर्स्ट करके एक ऑप्शन है, वहां पर प्रेस करना पड़ता है। सो आई वुड लव टू प्रे फॉर एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ उन्होंने इस समय को बिताया है। करीबन 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। मुझे लगा 9 बजे अपने आप कट होगा, बट ऐसे नहीं हुआ। प्रभु को धन्यवाद है, 9:15 हो रहा है। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सभी के प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। जैसे उस खुदा ने मेरी दुआओं को सुना, कि मेरी ये प्रार्थना थी कि मुझे मेरे पिता से मिलना है, मुझे मेरे पिताजी को देखना है, क्योंकि जिस इंसान का प्रभु ने इस्तेमाल किया मुझे इस दुनिया में लाने के लिए, मुझे उसे देखना था और प्रभु ने मेरी वो प्रार्थना सुनी। वैसे ही आप सभी की प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहता है। एक गीत हम गाएंगे, ये गीत जो है मेरे दिल के करीब है, और जब भी मैं मेरी गवाही को सुनाता हूँ, जब भी मेरी गवाही को मैं देता हूँ, तो ये गीत को मैं गाता हूँ कि सही में परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है भजन संहिता 34 में कि धर्मी लोग दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनकी सुन लेता है। और जैसे हम उसके लहू के द्वारा धर्मी है, क्योंकि उसने हमें अपनी धार्मिकता के वस्त्र से ढका है। थैंक यू जीसस। दुआ के बगैर जिंदगी एक धोखा है, एक झूठी खुशी हवा का झोंका है। दुआ ये मरते हुए की जो बचा देता है, दुआ तो बाप को बेटे से मिला देता है। दुआ कर ले आखिर किसने तुझे रोका है, दुआ कर ले आखिर किसने तुझे रोका है। दुआ ये छोटी बात नहीं, खुदा से मिलने का मौका है। ओ दुआ ये छोटी बात नहीं, खुदा से मिलने का मौका है। पहला आसमानी पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है पिता। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, हर एक लोग को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन, और हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके मनों में आप कार्य कीजिए, उनके मनों में आप काम कीजिए पिता, ताकि जो जो बातें उन्होंने सुनी है, शैतान उन सारी बातों को उनके हृदय से उठा न ले जाए, शैतान उनके सारी बातों उनके हृदय से चुरा न ले जाए पिता। उन सारी बातों को उनके हृदय में बैठने के लिए हम प्रार्थना करें पिता, और वो बातें जो उनके जीवन में मैंने बोई है खुदावन, वो बातें उनके जीवन में फल लाए, से हम प्रार्थना करें पिता। वो सीख सके, वो जान सके परमेश्वर आपने हमें धार्मिक वस्त्र दिए हैं, आपने हमें अधिकार की अंगूठी दी है, और औहदे का हमें आपने जूता पहना है पिता, आपने सुसमाचार के जूते पहना है पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं एनवेल टीम के लिए पिता, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि मैं आपके वचनों को लेकर बात कर सकूं और मेरी कहानी को मैं शेयर कर सकूं पिता। पिता आपने कृपा दान के इसलिए धन्यवाद करते हैं, महान में गौरव आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, Amen. brother. Amen. Brother, thank you so much. Thank you so Yeah. much. So before we end this session, I just want to share a small testimony with you. जैसे ब्रदर हुसैन ने बताया कि ना, उन्होंने जब मैं उनको कांटेक्ट किया तो वो बोले कि मैं लाइव सेशन में नहीं आ रहा हूँ करके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम जब मार्क त्रिभुवन का सेशन हुआ, उसके बाद से
प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा नेक्स्ट गेस्ट कौन होगा। सो पवित्र आत्मा ने बताया कि हुसैन मसीह। तो मैंने जब इनको कांटेक्ट किया तो तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया इनविटेशन। सो मैंने सोचा कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना। तो फिर बाद में मैं प्रार्थना में बैठी, हम प्रार्थना में बैठे और हमने फिर से परमेश्वर को सीख किया। और उतने में ब्रदर ने बोला, जब मैंने उनको बोला कि इट इज नॉट अबाउट वर्ड वर्शिप, थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने बोला कि ओके मैं करूंगा ये सेशन। एंड वी वर सो हैप्पी दैट ऑल दीज वाइल वो सो इतने एनकरेज थे। और ऑन बिहाफ ऑफ yeah, I would like to say this, but before I complete my testimony, मार्क त्रिभुवन के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ। पास्टर मार्क जब आए थे, आई वाज ऑलरेडी अपडेटेड बाय द जागो टीम कि उनका सेशंस होने वाला है। तो जब मैंने प्रार्थना में सुना कि नेक्स्ट गेस्ट इज मार्क त्रिभुवन, तो मैं होली स्पिरिट को बोलने लगी, आपको पता है ना उसका सेशंस चल रहा है करके उनका। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि कितना भी इम्पॉसिबिलिटी सिचुएशन आज के दिन आपको लगे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो सिचुएशंस पॉसिबल है, वो बातें पॉसिबल है। सो अपना जो सारा ध्यान जो है या फोकस जो है वो आप परमेश्वर की ओर रखे। सो on this note, I just want to end with this note, that focus on God, focus on his things, and let his things start elevating or start activating in your lives. So on behalf of our Unveil team, हमारा Unveil team, Let's Live Life, हमारे पास्टर, उन सभी के बिहाफ से हम ब्रदर हुसैन को थैंक्स बोलना चाहते हैं हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए एंड आपका कीमती समय देने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर योर लाइफ। And yes, and I want to thank everyone who has joined this session. And we really personally want to thank you from the bottom of our hearts. And also, sharing this link, we want to thank you. People who will be joining afterwards, जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। और इस बात को ध्यान रखें कि stay safe, stay vigilant, and stay connected to God, which is very important, है ना। और हमारे नाइट, मैं उसी तरह हमारे नाइट प्रेयर टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमेशा प्रार्थना करते हैं इस सेशन के लिए, उन सारे तमाम लोगों के लिए जो इस सेशन के लिए प्रार्थना करते हैं। I really want to thank you and God bless. Stay in touch. Be safe. Thank you. Amen. Thank you so much. Thank you so much, everybody.